pray for you. ٹھیک ہے, just pray. آیا میرے لیے جیا, میرے لیے یسوع نے دکھ اٹھایا, میرے لیے یسوع نے دکھ اٹھایا, میرے لیے مارا گیا, میرے لیے مارا گیا, میرے لیے مارا گیا, میرے لیے مارا گیا, میرے لیے پھر جی اٹھا میرا ہے مسیح, میرے لیے پھر جی اٹھا میرا ہے مسیح. میں مسیح کا ہوں, ہم مسیح کے ہیں, خوشی خوشی مناؤ, خوشی خوشی مناؤ, بولو بولو مسیحا کی جے, کہ تو ہی عزت پر ہے. تعریف تعریف ہر ایک جان للکارے, تعریف تعریف کہ تو ہی تکبر ہے. پھر بول ہاللویا, جے ہاللویا, تعریف ہاللویا, مبارک اس کا نام, اس کے آگے گر کر سجدہ کر دل جان سے, مالک ہے افضل بادشاہی. ہاللویا ہاللویا ہاللویا, ہاللویا ہاللویا ہاللویا, ہاللویا 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 ہاللویا, آمین آمین ہاللویا, آمین ہاللویا, آمین ہاللویا, آمین ہاللویا, خاندانوں کی نجات کے لیے دعا کریں. آئیے ہم سب دعا میں, یہ خداوند نے بہت خوبصورت موقع دیا ہے. آپ اپنی نیند کو, اپنی لگژری کو چھوڑ کر یہاں پر آئے. آپ اس جگہ پر ہیں جو جس کو خدا کا گھر کہا جاتا ہے. آئیے اپنے اپنے خاندان کے لیے دعا کریں. پتا ہمیں جانچ لے, دیکھ لے, دیکھ لے, اور ہر طرح کے جوئے بندھن کو آج نصف کر دے. کوئی جوا بندھن آئیے ہم کلیسیاؤں کے لیے دعا کریں, کلیسیاؤں کے لیے دعا کریں, چرچز کے لیے دعا کریں, عبادات کے لیے دعا کریں, اپنی کلیسیا کے لیے دعا کریں. میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم سب دعا کریں آج کی عبادت کے لیے. آسمان پر سے دیکھ لے بیٹا, اور یسوع نجات دہندہ کے نام میں کلیسیاؤں کے جوئے بندھن ٹوٹ جائے, آزاد ہو جائے, بحالی کا کام ہو, آزادی کا کام ہو. ہاللویا, او ہاللویا ہاللویا, سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہاللویا آسمانی باپ, میں تیرا شکر کرتی ہوں, میں تیرے نام کو ہاللویا جلال دیتی ہوں, اور تیرے نام کو مبارک کہتی ہوں, کیونکہ خداوند تو ہی واحد قدوس خدا ہے, تو سجدوں کے لائق ہے. اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ, اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. خداوند یسوع, ہم تیری اس قربانی کو یاد کرتے ہیں, اور تیرے اس جی اٹھنے کی فتح کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. خداوند یسوع, جو تو نے صلیب پر قربان ہو کر اور مردوں میں سے زندہ ہو کر اپنے لوگوں کو نجات بخشی ہے, ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے. ہم ان تمام کلیسیاؤں کے لیے, تمام چرچز کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند یسوع, جو آج تیرے جی اٹھنے کی اس عید کو مناتے ہیں. پاکستان میں اور دنیا بھر میں خداوند یسوع,
वो लोग तेरे निजात के पैगाम को समझे खुदावन और तेरी फतह को समझे। आए Lord. खुदावन Yes. यीशु Thank और you. तारे उन Thank बंधनों को तोड़ खुदावन यीशु, ताकि खुदावन लोग रूह और सच्चाई से और आज़ादी से खुदावन तेरे नाम को जलाल दे सके और तेरी परस्तिश कर सके। आमीन। हम हालेलुया। खास अपने चर्च कॉर्नरस्टोन एशियन चर्च यस के लिए बाप, दुआ तू करते रहम हैं। कर, रहम कर आए इस खुदावन कलीसिया। यीशु तेरा शुक्र करते हैं Yes, इस चर्च के लिए खुदावन जो तूने हमें मुहैया किया है Thank you. खुदावन, जहाँ पर हम तेरे नाम को जलाल दे सके। Thank you, तेरी Jesus. सारी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, जो आज यहाँ पर मौजूद है खुदावन यीशु। तू अपने लोगों को बड़ी बरकत दे खुदावन यीशु, अपना आसमान खोल और एक एक को खुदावन यीशु कसरत के साथ अपनी बरकत से भर दे। शाम की इबादत के लिए दुआ करती हूँ खुदावन यीशु जी। आए प्यारे खुदावन, तेरा मसा तेरी बरकत गहरे तौर से तेरे लोगों में काम करे खुदावन। तेरे खादम को, तेरी सारी खुदावन कलीसिया को, तमाम क्वायर को, तमाम परस्तिश को अभी से खुदावन तेरे पाक रूह के मसा के ताबे करती हूँ खुदावन आमीन। यीशु। हालेलुया। हमारी कुव्वत से नहीं, हमारी ताकत से नहीं, बल्कि तेरे रूह से सब कुछ मुमकिन है खुदावन Yes. यीशु। Yes. आए बाप, आज की इबादत में खुदावन तू बड़ा काम कर। जितने लोग तेरे घर में आए खुदावन यीशु, तेरी खुदावन यीशु पहचान, तुझे पहचाने खुदावन और जाने खुदावन यीशु जिंदा है, ये कब्र खाली है और हम जिंदा खुदावन के मानने वाले हैं। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तमजीद हो। आए खुदावन एक एक को बड़ी बरकत दे और खुदावन यीशु हमेशा इसी तरह अपनी जिंदगियों से, अपने कामों से खुदावन तेरे नाम को जलाल देते रहें। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे जिंदा यीशु नासरी के नाम के वसीला से मांगती हूँ। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। ते दुनिया दी निजात दहिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। ते दुनिया दी निजात दहिंदा हो गया। निजात दहिंदा हो गया। जिंदा होया मौत दे कबर नू जित के। जिंदा होया मौत दे कबर नू जित के। ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हाथ ते। ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हाथ ते। बोलो हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। ते दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। ते दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। पापा तो बचावन यीशु आया जग ते। पापा तो बचावन यीशु आया जग ते। पाप सब दे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। ते दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। ते दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू। जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू। ते दिल विच रखियो मसीह दी दीद नू। ते दिल विच रखियो मसीह दी दीद नू। बोलो हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। ते दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। ते दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करते हैं आप सबके लिए जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर यहाँ पर आए हैं।
जब आप अपने बेड से निकले, आपने तैयारी शुरू की, खुदावंद ने उसी वक्त से आपको बरकत देनी शुरू की। ऑफ कोर्स कि आज आप दूर दराज से बहुत सारे बहन भाई दूर से भी आए, और सबसे दूर से हमारे एक भाई हैं जो न्यूयॉर्क से आए। भाई नॉर्मन ये कह रहे थे कि मैं ज़रूर आज की सर्विस में शामिल होऊंगा। सो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो ब्रैम्पटन से, वॉन से और नज़दीक मिसिसागा और जहाँ से भी आप आए हैं, ये दुआ करें कि खुदावंद इस सर्विस को बढ़ाए। आमीन आमीन। सारी चीजें हैं ये भले की, हालेलुया, सारी चीजें हैं ये भले की, तारीफ हो खुदा के भले की, तारीफ हो खुदा के भले की, परस्तिशो सदा तेरी आए खुदा, परस्तिशो सदा तेरी आए खुदा, सना हो भले की, हालेलुया, सना हो भले की, तारीफ हो खुदा के भले की, तारीफ हो खुदा के भले की, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं सिताइश भले की, हालेलुया, करते हैं सिताइश भले की, तारीफ हो खुदा के भले की, तारीफ हो खुदा के भले की। यीशु है अज़ीम, उसकी हो ताज़ीम, यीशु है अज़ीम, उसकी हो ताज़ीम, सारे लोग सुना भले की, हालेलुया, सारे लोग सुना भले की, तारीफ हो खुदा के भले की, तारीफ हो खुदा के भले की। हम जरा जोर से गाएंगे, तारीफ हो खुदा के भले की, 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 तारीफ हो खुदा के भले की। तू मेरा बसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा बसा है, तू मेरी कुव्वत है, तेरी खुशी तेरा बसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा बसा मेरा जोर है, तेरी बादशाही का एक ऐसा जोर है, तेरी खुशी है, तू मेरा बसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा बसा है, तू मेरी कुव्वत है। और जब हम इन बातों को याद करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उन बातों की पैरवी की जाए और याद रखा जाए। सो आज का ये खूबसूरत मौका जो उसने हमें दिया, मैं चंद एक बातों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो गुनाह का आगाज़ था वो औरत ही से हुआ। हम सब जानते हैं कि हवा ने गुनाह किया और इस तरह से दुनिया में गुनाह आया, लेकिन उसके बाद निजात का बड़ा काम जो है वो भी औरत ही के वसीले से हुआ।
हम सब इस बात को भी जानते हैं कि मुकद्दसा मरियम को चुना गया यीशु मसीह की माँ होने के लिए। और जब हम आज इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो खुशखबरी का जो पैगाम है वो भी औरतों ही से शुरू हुआ। सो पादी साहब ने इसलिए मुझे मौका दिया कि आज हम इस शुक्रगुजारी के सुबह को ख़वातीन के साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं बाइबल मुकद्दस में से, देखिए यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब। इस वाक्य को आप ज़रूर अपने सामने रखें, हम इसको पूरा रिसाइट नहीं कर सकते, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं उस सारे वाक्य को। जब मैं इन चारों अनाजील को पढ़ रही थी और मैं देख रही थी इस वाक्य को, और जैसा कि हम जानते हैं कि हम में से हर शख्स जब भी किसी वाक्य को बयान करता है तो उसका बयान करने का अपना अंदाज होता है। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में इन चारों अनाजील में इस वाक्य को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस वाक्य की अहमियत क्या है। और मैं ये समझती हूँ कि ये ख़वातीन की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि ये बहुत बड़ा जो मैसेज था, बहुत बड़ा पैगाम जो था, ये ख़वातीन ही से शुरू हुआ। और मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन की तबीयत में ये बात है कि वो ज़िम्मेदार हैं। हम देखते हैं कि उनकी तबीयत में फ़िक्रमंदी है। हम देखते हैं कि वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हैं। और जब उस दौर की ख़वातीन का जायज़ा ले रही थी, मुतालिया कर रही थी, तो मैं उनकी अकीदत को, उनकी तबीयत को, उनकी बातों को मद्देनज़र रखते हुए सोच रही थी कि उनकी लगन खुदावंद यीशु मसीह के साथ कितनी ज़्यादा थी। और मैं देख रही थी, जब इस वाक्य को अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़ें। इसमें किस तरह से लिखा हुआ है कि पो फटने से बहुत पहले, जैसे आज हम सब 4 बजे यहाँ पर आए और आपने देखा कि अंधेरा था। सो मैं ये सोच रही थी कि ये कितना ज़्यादा उनके खुदा के साथ, उनका खुदा यीशु मसीह के साथ लगाव था। और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो सिर्फ ख़वातीन ही थी और वो उस सारे वाक्य की वजह से उदास थी, परेशान थी। और हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने किसी का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को लेकर जाती हैं और जाकर अपने मसीहा की तलाश करती हैं। जब मैं उनकी तबीयत को देख रही थी तो मैं देख रही थी कि उन्होंने ना अंधेरे की परवाह की, ना किसी शख्स को साथ लेने की परवाह की कि शायद अभी अंधेरा है, मुझे किसी को लेना है या किसी का इंतज़ार करना है, बल्कि उन्होंने खुद पहलकदमी की और आगे बढ़कर वो गई। और फिर अगली बात जो मेरे जहन में आती थी वो ये थी कि उनको पता था कि जब कल उसको दफन किया गया और जो रवायात के मुताबिक थी, कब्र के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रखा गया और उसको सील किया गया था। लेकिन एक खूबसूरत ईमान इन ख़वातीन का नज़र आता है कि उन्होंने उस पत्थर के लिए भी नहीं सोचा कि हमारे साथ तो कोई मर्द नहीं, अगर हम यीशु को देखना चाहती हैं तो उस पत्थर को कौन हटाएगा, बल्कि उनके अंदर सिर्फ एक लगन थी, एक प्यार था। और उन्होंने इन हालात की बिल्कुल परवाह न की, ना इर्द गिर्द के माहौल की परवाह की, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वहाँ सख्त पैरा भी था, लेकिन उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की, बल्कि वो बड़ी बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ और बड़े प्यार के साथ वहाँ पर जाती हैं और देखती हैं कि कब्र के ऊपर से पत्थर हटा हुआ है। और जब मैं यहाँ तक पहुँची तो मैं ये सोच रही थी कि शायद बाज़ औक़ात ख़वातीन के अंदर क्योंकि डर भी होता है, और हो सकता है कि वो डरपोक अगर होती तो उस पत्थर को देखने के बाद वो डर जाती हैं और वो घर भाग जाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आया, बल्कि हम देखते हैं कि वो परेशान होती हैं और कोशिश करती हैं जानने की कि मेरे मसीहा की लाश को कहीं कोई चुरा कर तो नहीं ले गया। और हम देखते हैं कि वो भागी हुई शागिर्दों के पास जाती हैं और उसके शागिर्दों को जाकर उस सारे माजरे को, उस सारे वाक्य को बयान करती हैं और उनसे कहती हैं कि आओ देखो ऐसा क्या हो गया। हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु हम आपका शुक्र करते हैं, आप बहादुर और वफादार बेटे निकले, हम आपका शुक्र करते हैं यीशु। आप बाप का बाजू बन के और बाप की कामल मर्जी को ले लिया और पूरा कर दिया, हम आपका शुक्र करते हैं।
हालेलुया हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन। मत्ती की इंजील में और 28 बाब में और सबक के बाद हफ्ता के पहले दिन को फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। तो यहाँ पे हम एक खूबसूरत सा सीन हमारे सामने आता है और मैं इस बात के ऊपर गौर कर रही थी कि जब ख़वातीन जो उस सारे एक ग्रुप में शामिल थी शागिर्दों के साथ और वो मिलकर इन गुजरे सारे पिछले वक्त में खुदावंद यीशु मसीह के साथ कितने सब मिलकर एक फैमिली कितना अटैच थे और वो लोग इकट्ठे सारे इस खिदमत में शामिल थे। तो एक बहुत खूबसूरत एक ख़ानदान की पिक्चर हमारे सामने आती है, एक मसीह ख़ानदान की। लेकिन हम फिर उस सीन को जब लेकर आगे थोड़ा बढ़ते हैं, हम अगले एपिसोड में पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की अज़ियत और तकलीफ जो कि हमने गुड फ्राइडे पे भी उस पर गौर किया। और यकीनन जब एक ख़ानदान के अंदर दुख आता है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है और दिल को तोड़ देने वाले ऐसे वाक़यात होते हैं तो सारा ख़ानदान मायूसी का शिकार हो जाता है और उस डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मैं यहाँ पर इंसान होते हुए हमें इस चीज़ को महसूस करना है और एहसास करना है, हमें इस चीज़ की फीलिंग को समझना है, उसकी इंटेंसिटी को समझना है कि जब वो ख़वातीन उस तकलीफ़ में से गुजरी होंगी तो उनका यकीनन दिल नहीं चाहता होगा कि वो दोबारा से उस जगह से निकलें बाहर या अपने कमरे से बाहर निकलें और यकीनन उनको स्ट्रगल करना पड़ा होगा। जिस्मानी तौर पे डिप्रेशन एक बहुत बुरी चीज़ है और इंसान को वो यहाँ तक कई दफ़ा इंसान दुआ भी नहीं करना चाहता। लेकिन हम क्या यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत उनके अंदर दिलेरी का हमें एक इमोशन कहना चाहिए या एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कहनी चाहिए पाई जाती है। इस सारे वाक़यात और सारी उस तकलीफ और उस सलीबी मंजर के बाद हम देखते हैं कि ये ख़वातीन इन्होंने लीड ली और इन्होंने उस डिप्रेशन के मौके को, आप देखें इनके साथ कोई मर्द शामिल यहाँ पे नहीं था, कोई डिसाइपल इनके साथ नहीं था यहाँ पर, ये सिर्फ ख़वातीन ने लीड ली और वो निकली वहाँ से और उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपनी ड्यूटी को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको फुलफिल करने के लिए वो वहाँ चली। उन्होंने वहाँ जाकर उस कब्र पे पहुँचने की तैयारी की ताकि वो अपने मसीहा को, अपने प्रभु को, अपने यीशु को वो जाकर देखें। और उसकी जैसे कि वहाँ पे रवायत थी कि वो सुबह सुबह जाकर कब्र पर लोग पहुँचते थे और अपनी सारी उन रस्मात को पूरा करते थे। तो यहाँ पर मैं सोचती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत बात है। लेकिन मैं जिस आयत पे आज आप लोगों का चाहती हूँ कि गौर करें वो 28 इस बाब की हम देखेंगे यहाँ पर 6ठी आयत। और मैं इस आयत पे गौर कर रही थी और इसको इंग्लिश में भी यूँ लिखा है मैथ्यू 28:6 और इंग्लिश वर्जन में इसकी कुछ यूँ वर्ड्स है, ही इज़ नॉट हियर फॉर ही इज़ रिजन। और उर्दू में इसका यूँ हम पढ़ेंगे, वो या नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावन पड़ा था। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक बहुत ही आगे उम्मीद का पैगाम उनके लिए वेट कर रहा था। जब हम अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसे लम्हात में से गुजरते हैं जो हमारे लिए नाहित तकलीफ़ें होते हैं, परेशानी का बायस होते हैं, लेकिन जब हम खुदावन में होते हैं मजबूती का बायस बनते हैं दूसरे के लिए और हम दूसरे को इनकरेज करते हैं। और यहाँ इन ख़वातीन ने भी दूसरे को यकीनन इनकरेज किया होगा और वो मिलकर वहाँ पर पहुँची तो उनको उस डिप्रेशन के बाद उम्मीद का पैगाम मिला, उनको उस डिप्रेशन के बाद होप का पैगाम मिला। और ये वो होप थी जो कि सारी दुनिया के लिए उम्मीद बन गई, ऐसी उम्मीद जो कि हमें ज़िंदगी का पैगाम देने के लिए उन फरिश्तों ने उन ख़वातीन को दिया। लेकिन उन ख़वातीन ने, वो पहली ख़वातीन थी जिन्होंने आगे जाके शागिर्दों को ये पैगाम दिया कि यीशु मसीह अब मुर्दा नहीं है, ना वो उस कब्र में पड़ा है, बल्कि वो मौत और कब्र पर फतह पाके जी उठा है। यहाँ पे हम दो चीज़ों को सीखेंगे, वक्त का भी हम करते हुए अपने नज़र में रखते हुए मैं ब्रीफली बस दो बातें आपके सामने रखूँगी कि ही इज़ नॉट हियर फॉर ही इज़ रिजन। और इसमें हम क्या देखते हैं, पहली बात इसमें हमें दो चीज़ें नजर आती हैं। पहली चीज़ हम देखिए कि खाली कब्र, और खाली कब्र की इस बात का रिमाइंडर है कि हमारा खुदावन यीशु मसीह जी उठा है और वो जिंदा है। और यीशु ने उस 3 दिन के बाद, उस तकलीफ को उठाने के बाद, उस कब्र और मौत और गुनाह के उस डंग को कुचला
और खुदावंद यीशु मसीह जी उठा। पहला करंथियों आप मेरे साथ निकालें जल्दी से, उसकी 15 आयत, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में ये नहीं कि सिर्फ मत्ती की इंजील में जिक्र है, लेकिन और जगह पर भी हम देखते हैं कि इस चीज़ की बार बार गवाही दी गई है। पहला करंथियों 15 बाब उसकी 3 से 4 आयत। इसमें यूं लिखा है, चनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। तो हम क्या देखते हैं कि ये पैगाम उन खवातीन से शुरू हुआ था, जी उठने का, और उन खवातीन को किन्होंने दिया? उन फरिश्तों ने दिया। और ये उनकी हिम्मत और दिलेरी का नतीजा था कि शायद अगर वो सुस्ती कर देती और वो उस कब्र पे ना जाती तो शायद आज वो इस पैगाम को सबसे पहली मैसेंजर्स ना बनती, लेकिन वो उस पैगाम की कैरियर बनी। वो उन फरिश्तों से सुनकर, उन एंजल से सुन के उन्होंने पैगाम जाके उन शागिर्दों को दिया जो मायूसी की हालत में यकीनन पड़े होंगे और उस सारी तकलीफ को देखने के बाद पता नहीं क्या क्या ख्यालात उनके जहन में आ रहे होंगे। लेकिन फिर ये पैगाम आगे देखें, सारी आगे हम जो बाइबल मुकद्दस की नए ऐहदनामे में किताबें हम देखते हैं, इसका बार बार जिक्र हो गया। और वक्त चूंकि कम है इसलिए मैंने आपके लिए एक ही हवाला यहाँ से निकाला, पहला करंथियों 15 बाब उसकी 3 आयत में देखते हैं कि खुदावन का बंदा भी यहाँ पे यही कहता है कि ये पैगाम चनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची। तो आज ये पैगाम हमें भी, ना सिर्फ खवातीन को बल्कि हम तमाम लोगों के लिए है कि अगर आज हम यहाँ सुबह इस खुशी के साथ यहाँ मौजूद हैं कि मेरा और आपका यीशु जी उठा है, तो आपको और मुझे इस पैगाम के मैसेंजर्स बन के दुनिया में इस पैगाम को पहुंचाना है। हम जिस जगह पर भी हैं, चाहे अपनी जॉब्स पे हैं, चाहे हम किसी भी जगह पर हैं, अपने फैमिलीज में हैं, हमारी जिंदगियों से खुदावन की जी उठने का पैगाम, उसके जी उठने की खुशबू तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए और वो हमारी ज़िंदगी के ज़रिए पहुंचेगी, जो हमारी ज़िंदगी में उसकी लिविंग होप होगी और वो लिविंग होप हमारे अंदर उसका ईमान उस पर रखने से जाहिर होगी। तो आए आज हम इस बात को कंक्लूड करें इस बात से कि खुदावन यीशु मसीह जिंदा है, उसकी कब्र खाली है, उसने मौत को कुचला है और आज आप और मैं दिलेरी से कह सकते हैं, आए मौत तेरा डंक आ रहा, आए मौत तेरी फतह कहाँ रही, क्योंकि मेरा यीशु मौत को कुचल कर जी उठा। मेरा यीशु आज तख्त पे बैठा है और वो दोबारा आने वाला है और वो आकर आपको और मुझे अपने साथ ले जाने को हमें बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन क्या आप और मैं तैयार हैं? उसके आने से पहले जो थोड़ा सा वक्त रह गया है उसमें आपको और मुझे मैसेंजर्स बन के इन खवातीन की तरह इस पैगाम को आगे जाना है और बताना है और दिलेरी से हर को बताना है कि जीसस इज लाइव, ही इज नो मोर डेड, ही इज नो मोर हियर, ही इज रिजन। खुदावन आप सबको बरकत दे, आमीन।